ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੇਕ FIR ਬਣਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਘੜਨ ਤੇ FIR ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ FIR ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੌਣ ਲੈਣਗੇ? ਮੁਜਰਿਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਜਰਿਮ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, FIR 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ FIR ਕਰਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਾਵੇ ਸੀ ਪੋਨ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਸੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, 에ਅਰ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਵਾਟਰ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਪਾਰਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਦੀ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾई ਜੇ एमिशंस ਨੂੰ रोक ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ तो शायद वो भी जगह ठीक हो जाए। बिल्कुल। उदयपुर में जो कत्ल कांड हुआ सर, उसका क्या प्रभाव रहेगा पूरे हिंदुस्तान पर? देखो, पहला क्वेश्चन मैं इसको 2-3 तरीके से डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू बन चुका है। जो हमारे यहाँ पे कुछ रिलीजियस इनटॉलरेंस बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन अपने रिलीजन के लिए अपने रिलीजन को नेगेटिव लाइमलाइट में लेके आ रहा है, ये इस वक्त जानने की क्वेश्चन है। क्या प्रॉफेट मोहम्मद का नाम जो लोग नूपुर शर्मा की टिप्पणी को सपोर्ट कर रहे थे उसने ज़्यादा ख़राब किया, या जिन लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे एक आदमी को मार दिया उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का नाम ज़्यादा ख़राब किया? क्वेश्चन ये है इस वक्त जानने वाला कि कौन प्रॉफेट मोहम्मद के नाम को ख़राब कर रहा है। जो लोग उनके नाम पे बेदिमागी हिंसा कर रहे हैं, क्या वो लोग जिम्मेदार हैं, या जो उनको नहीं मानते हैं वो जिम्मेदार हैं? जी, हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ब्लास्फेमी लॉ की कोई जगह नहीं है। मतलब कि अगर कोई धर्म को मानता है या धर्म को नहीं मानता है, इसका हमारे रिलीजन में अगर वो कहता है कि धर्म बेकार है तो आदमी का कहने का हक है जी। अगर वो कहता है कि कोई भी पीर पैगंबर भगवान गलत है, झूठे हैं, मैं उनको नहीं मानता, उसका कहने का अधिकार है जी। धर्म हमारी एक पर्सनल चीज है, हमारे दिल में रखने वाली चीज है। इट इज नॉट समथिंग टू बी वॉर्न ऑन योर स्लीव। ये आपकी पर्सनल अपने मन में रखने वाली चीज है, ये सबको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप किसी के धर्म का अनादर करो, वो बेसिकली ह्यूमन डिसेंसी नहीं है जी। अगर आप ऐसे लोगों की फीलिंग को हर्ट करते हैं वो आपको लीगली शायद अलाउड होगा, पर अगर आप इस तरह से कुछ किसी चीज का निरादर करते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है जी, तो आप पे केस बनेगा। बिल्कुल। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या कि धर्म के निरादर के नाम पे क्या जस्टिफाई हो जाता है सड़कों पे पथराव, किसी का कत्ल जी? आज हमारे यहाँ पे जो इंडिया का जो मुस्लिम धर्म है वो एक पीरों वाला धर्म है जी। आज अगर उसकी तालिबानाइजेशन हो जाएगी, इसका नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को होगा। बिल्कुल। अब ये जो लोग हैं ये तो अपने मन में यही सोच रहे हैं ना, जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है, जिन्होंने कत्ल किया है, कि हमने अपने धर्म के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जी, या बहुत ही एक शूरवीरों वाला काम किया है। इनको ये चीजें सिखाता कौन है? तो इस वक्त हमारे यूथ को रिलीजन फैनेटिज्म से दूर रखने की जरूरत है। हमें उनमें साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह के एप्टीट्यूड, मैं ये कहता हूं धर्म की जगह है हमारे जीवन में, धर्म हमें अच्छी चीजें सिखाए, पर धर्म ही सब कुछ है और धर्म के नाम पे आप किसी इंसान को या किसी जानवर को या किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हो, ये नहीं होना चाहिए।
तो इस वक्त हमें इसीलिए कहते हैं कि अगर एक ट्रू हिंदुस्तानी अगर हमें बनना है तो नेशनलिज्म हमारे अंदर होनी चाहिए जी। धर्म क्या करता है, लाइफ में एक पर्पस देता है, बिल्कुल। तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या नेशनलिज्म नहीं हो सकता? आज कुछ लिबरल लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं, वो बोलेंगे जी कि नेशनलिज्म इज इक्वल, हिटलर की नेशनलिज्म से कंपेयर करते हैं जी। वो रेसिज्म थी। नेशनलिज्म या रिलीजन का पर्पस ये है कि अपने से बड़ी एक चीज के लिए आपकी लाइफ में पर्पस होना। जी। जो लोग रिलीजन में करते हैं वो भगवान में ढूंढते हैं कि मेरे से बड़ा कुछ है जो मेरी लाइफ को पर्पस देता है, जिसके कारण मैं हर रोज सुबह उठता हूं, एक सही बिहेवियर रखता हूं, मेहनत करता हूं और एक अच्छे रास्ते पे चलता हूं। जी। पर अगर धर्म के नाम पे वो अच्छे रास्ते से गलत रास्ते पे चला जाए तो मेरे को लगता है कि उसका सब्स्टिट्यूट आज के जमाने में हिंदुस्तान में नेशनलिज्म हो सकता है कि मैं अपने देश के लिए मेहनत करूंगा, मैं अपने देश के हर नागरिक का सम्मान करूंगा क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। मैं अपने टैक्स भरूंगा, मैं अपने आप को और काबिल बनाऊंगा ताकि मैं अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। तो मेरे को ये लगता है कि हमारे यहां पे जो रिलीजन को हर कोर मुद्दा, आज आप हमारे न्यूज चैनल सुन लीजिए, हर वक्त माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये इशू हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमारी ये डिस्कशन करना चाह रही है कि सबके इक्वल राइट्स और नेशनलिज्म कैसे प्रमोट हो। तो जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते रहेंगे। अब गवर्नमेंट को बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल। सिर्फ ये 2 लोग या ये 2 नौजवान जिन्होंने कत्ल किया सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है जी। इनको किसने उकसाया, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कहां पे इनका ऐसे माइंड टर्न किया जाता है जी। वो इनको भी तो ऐसे किसी दूसरे इंसान का कत्ल कोई अचानक उठ के नहीं कर देता है जी। कई बरसों से उनके दिमाग में कुछ चीजें भरी जाती हैं जिसके कारण इसकी पूरी जड़ तक अब राजस्थान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को जाना चाहिए ताकि हमारे नौजवान, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, वो धर्म के नाम पे देश का नुकसान करना बंद कर दें जी। वो देश के असेट्स को तोड़ना बंद कर दें, वो किसी भी धर्म से हो जी। तो हमें ये जो रिलीजियस बिगटरी जी जो हमारे देश में कि रिलीजन के नाम पे आप दकियानुसी हो जाते हो, आप दूसरे रिलीजन को अपने से कम समझते हो और आपको लगता है सिर्फ मेरा ही रिलीजन या मेरा ही पैगंबर सही रास्ता तुम्हें दिखा सकता है, ये सोच हिंदुस्तान की सोच नहीं है, ना ही कभी रही है, हजारों सालों में कभी नहीं रही है जी। तो हमें अपनी जो इंडिक वैल्यूज हैं कि जिसमें सबका सम्मान है, हर रिलीजन के लिए जगह है जी। कई करोड़ भगवान देवी देवताओं की जगह है, हमें वही उसी सोच पे चलना है। बिल्कुल। वो किसी भी धर्म से हो। बिल्कुल सर, है ना, आप सही रास्ते पे चले। मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट को जो भी लोग इस तरह की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को इस जगह ऐसा माइंडसेट बनाने में हेल्प करती हैं या उनको इनकरेज करती हैं, इसकी पूरी जड़ तक तहकीकात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ अपराधियों के लिए पूरे एक कम्युनिटी को नफरत नहीं करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अब सरकार को और कड़े कदम धर्म की तरफ तो हमें देखना ही बंद। आप ऐसे मत देखिए जी, आप इनको ऐसे देखिए कि ये 2 लोगों को किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने, मैंने इसलिए वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस यूज किया, वो किसी भी धर्म से हो जी, जो इनको उकसा रही है, आप उन पे बैन लगाओ, उस तरह की सोच, उस तरह के लिटरेचर पे बैन लगाओ जी। तो ये काम गवर्नमेंट का है कि धीरे धीरे हमारे अंदर एक कल्चरल चेंज भी लाना। सर, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बिना इनसाइट्स ख़त्म नहीं हो सकती और वहाँ फ्लोर टेस्ट कल होने जा रहा है और अमित शाह भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में भी प्ली दर्ज की गई है। देखो, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, जो शिवसेना है उनके जो लॉयर हैं अभिषेक सिंघवी जी, उन्होंने ये बोला कि जो रिबेल एमएलए हैं वो फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है जी। अब वो कह रहे हैं कि चलो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है पर वो रिबेल हैं तो किसी ना किसी टेक्निकलिटी पे वो हमारे उस फ्लोर टेस्ट में ना बैठे जी। अब मेरी उनकी इस आर्ग्यूमेंट पे एक फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है जी। वो ऑब्जेक्शन ये है कि ये लोग लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है जी। एमएलएस की मेजॉरिटी के बेसिस पे ही आपको स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। बिल्कुल। ये चुने हुए एमएलए से बिल्कुल आज ये रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की विल जी। तो अगर ये वहां पे नहीं है तो फंडामेंटली इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 50 ऐसे एमएलएस को इग्नोर कर रहे हो जो लोगों ने चुन के भेजे। बिल्कुल। तो आप ट्रूली मेजॉरिटी गवर्नमेंट कैसे बना पाओगे जी। और अगर आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी है तो आप सबको लेके आपका प्रिंसिपल स्टैंड तो यही बनता है जी। कि ठीक है, आप
चाहे आज आप हमारे साथ नहीं हैं, हमें अपनी मेजोरिटी डिस्पाइट दैट प्रूव करनी है जी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आइडियल और ये वो बातें हैं जो हम चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी में जी। पर जो हमारे नेता हैं वो पावर हंग्री है जी। वो चाहे कोर्ट में जाएं, चाहे वो लाखों रुपए की फीस दे अभिषेक सिंघवी को या किसी और लॉयर को दे, उनका पर्पस ये है कि समहाउ पावर के साथ जुड़े रहना। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये टर्मोइल शुरू हुआ था, जब एक एक करके एमएलए कभी असम कभी गुजरात जाने की बातें हो रही थी, पीछे से आपको पता है एनसीपी की मिनिस्ट्रीज ने क्या किया, करोड़ों रुपए के बिजनेस एलोकेट कर दिए जी। रिकॉर्ड लेवल पे उन्होंने बिजनेस एलोकेट किया कि पता नहीं गवर्नमेंट बचेगी नहीं बचेगी, तब तक हम ये प्रोजेक्ट एलोकेट कर देते। अब आप खुद सोचिए, क्या देश सेवा के भाव में इतनी जल्दी प्रोजेक्ट एलोकेट किए गए? अचानक से वो मेहनती हो गए कि कोई और कारण रहा होगा कि जब हम हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देंगे, क्या रीजन था जी? तो ये हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पर हम लोगों को सोचने को जरूर बोल रहे हैं कि आप देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दिस गवर्नमेंट इज हैविंग। इनके मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अभी तक जेल में जी, जो एक्स होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के अभी तक जेल में जी। बिल्कुल। जिस गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हो, उन पे इस तरह के इल्जाम लगे हों, उस तरह की गवर्नमेंट का मॉरल हाई ग्राउंड आप कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। और उसके ऊपर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो रिबेल एमएलएज हैं वो उनका मॉरल कैरेक्टर खराब है जी। तो ये अब हम महाराष्ट्र की और पूरे देश की जनता पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये नेशनल प्लेयर्स भी हैं जी, कि आपको किस तरह की गवर्नमेंट्स चाहिए। बिल्कुल सर, इस क्राइसिस में महाराष्ट्र की जनता का कितना नुकसान हुआ? महाराष्ट्र की जनता का तो देखो ट्रिमेंडस नुकसान है जी। जब गवर्नमेंट, अब जब चलो एनसीपी ने तो कुछ टेंडर बांट दिए जी, कितने काम रुक जाते हैं, कितनी ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, कितने काम जो क्रिटिकल थे, कितने बिजनेस गवर्नमेंट के रुक जाते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र का बजट देखो, आप उसको पिछले 3 हफ्ते से डिवाइड कर लो जी, उतने 1000 करोड़ का आपका नुकसान है। बिल्कुल। महाराष्ट्र बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो पर मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख करोड़ जी के करीब का उनका बजट होगा। बिल्कुल। एक दिन का रफली 300 करोड़ हो गया जी, ठीक है ना, आप ये मान के चलो। तो अगर 3 हफ्ते हैं, 300 इंटू 20 कर लो, 60,000 करोड़ का नुकसान तो महाराष्ट्र के लोग सह ही चुके हैं गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी के कारण और इस तरह के लैक ऑफ फोकस के कारण। बिल्कुल सर। सर, नाटो समिट हुआ, उसमें स्पेन के पीएम ने कहा कि पुतिन को हम जीतने नहीं देंगे, पुतिन जीतेंगे नहीं। देखो, ना तो पुतिन हारेगा ना ही नाटो हारेगा, हारेंगे तो सिर्फ यूक्रेन के लोग, और वो हार चुके हैं जी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक ऐसा लीडर चुना जो वही करेगा जो नाटो उनको बोलेगा। बिल्कुल। उनके प्रेसिडेंट रदर देन लुकिंग एट कि उनके देश की क्या दुर्दशा हो रही है, वो ये कह रहे हैं नाटो को कि भाई आप इनके साथ लड़ाई में हमारी हेल्प करो जी। जब उन्होंने 4 महीने में नहीं कही तो अब कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये सारी बयानबाजी सिर्फ समिट्स पे बड़े बड़े नेताओं के, जैसे बोलते हैं ना, बोल बचन है जी। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो लोग पिस रहे हैं वो यूक्रेन के फौजी और वहाँ के नागरिक हैं जी। वहाँ की पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। और पुतिन को आप मतलब पुतिन की हार इसमें कैसे है, ये मैं उनसे पूछना चाहूँगा जी। पुतिन इज अचीविंग हिज गोल्स, ही इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ सर्टन की इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्कटिक रीजन में वो अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं, वो अपने वेपन्स को शोकेस कर पा रहे हैं, और इन द मीन टाइम उनकी इकॉनमी, उनकी ना तो उनके पेट्रोल के या एनर्जी बिजनेस पे आप बैन लगा पाए, खुद आपकी डिपेंडेंसी है, और आपने यूरोप को भी जो नेचुरल गैस की क्लीन एनर्जी से हटा के कोयले की तरफ लेके जा रहे हैं जी। तो ये जो स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, तो ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली जी। तो उनकी ये 51, 52, 53, 54 वाली स्टेट्स हैं जो 50 स्टेट्स के अलावा, तो इनका कोई भी अपना सॉवरन डिसीजन नहीं है, ये वही बोल रहे हैं जो इनको अमेरिका बोलने को बोल रहा है। बिल्कुल। इससे बेटर रिस्पॉन्स तो हमारे भारत का रहा है। हमने G7 समिट में हमें इन्वाइट किया गया, बट वी टुक आवर स्टैंड, हमने तब भी ये बोला कि हम वही करेंगे जो भारत के हित में, हम अपने एनर्जी नीड्स को क्राइसिस में नहीं डालने वाले। तो मेरे को ये दिखाता है कि किस तरह की जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हम भारत के वासी या भारत की सरकार हमारे लिए बना रही है। बिल्कुल सर, हर लीडर को, चाहे वो पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, देश का हो या दुनिया में किसी भी अन्य देश का हो, उसको इंडिपेंडेंट होकर सोचने की ज़रूरत है ताकि वो अपने लोगों के लिए सोच सके। बिल्कुल। शुक्रिया सर इनसाइट्स के लिए। इस तरह के मीनिंगफुल इनसाइट्स और देश दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे।